Good morning, everyone. Hope all is well and good. We are continuing our topic, chapter number 8 to class 11. Seven chapter is test, measurement and evaluation in sports. It's concerned with the practical part, so we will do it later when we will start our practical work. Today we will start our studies after half-year exam from Unit 8, that is your fundamentals of anatomy, physiology and physiology in sports. In this topic, we will discuss about three different sub-disciplines of physical education. First is anatomy, second is physiology, and third one is physiology. In sports, everyone wants to enhance their performance so that he or she can compete at peak level during the competitions. So, various branches of sports researching different and new training methods, new apparatus, instruments, equipments, new playground surfaces, so that a player can participate without facing any sports injuries. Sports injuries and sports career to different sides of same coin. अगर आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, नेशनल लेवल प्लेयर, जो कभी ना कभी किसी स्पोर्ट्स इंजरी से फेस ना किया हो. सचिन तेंदुलकर फेसिंग टेनिस एल्बोस in their life. So these are the some branches of physical education which help us to enhance our physical performance, our sports performance without facing any sports injury. So first is anatomy. Anatomy consists of two words, ana and tomy. Ana means body parts. Anatomy is the science which deals with the structure of human body. हमारे body parts में कितने बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स की सिचुएशंस कहाँ पे वो फिट है, एलिवेशन कहाँ पर है, ये शेप क्या है, साइज क्या है, और ये हमें स्टडी करना है. तो वी विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी इज द साइंस व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ ह्यूमन बॉडी. एंड सेकंड इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज द स्टडी, इज द साइंस व्हिच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडीज. हार्ट का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है, आपके किडनी का क्या फंक्शंस है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स का क्या फंक्शन है, आपके बाइसेप्स का क्या फंक्शन है. जो बॉडी पार्ट्स हमने स्टडी किए एनाटॉमी में, वो बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग है ह्यूमन बॉडी में. तो उन फंक्शनिंग को अगर स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, कितनी उनकी लिमिटेशंस है, कैसे उस लिमिटेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरीके से मूव होगा, स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं होगी, परफॉर्मेंस इनहेंस होगी, वो सब मूवमेंट इसमें स्टडी होगी आपकी फिजियोलॉजी में. Then physiology. Physiology is the gift of science in the field of sports. Physiology means physio plus logy. Physio meaning होता है motion, logia meaning होता है study. तो motion study which affect human movements is known as a physiology. Physiology क्या है? Physiology वो branch है जो interrelationship of physiology and anatomy, the body parts, लोकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज के बीच में जो इंटररिलेशनशिप है विद द मूवमेंट, किसको कौन स्टडी करता है, उसको फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स. सो दीस आर थ्री डिफरेंट टर्म्स वी विल डिस्कस देयर ऑन डिटेल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल these science branches, anatomy, physiology and physiology. The first benefit of importance of these studies, anatomy provides the knowledge of structure of various organs. As we discussed earlier, anatomy help us to know the situated place of human body organs. So first of all, before participating in sports, we have to know our knowledge have about our body parts. कौन से body parts कहाँ पर है, उनकी limitations क्या है, किस बॉडी पार्ट की क्या फंक्शन रहती है, वो कौन बताएगा, फिजियोलॉजी. और उन फिजियोलॉजी को लेकर, एनाटॉमी को लेकर कितनी मूवमेंट की परसेंट की इंक्रीज हो सकती है, वो कौन बताएगा हमें, फिजियोलॉजी. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स और organs. Second importance of these sciences is physiology provides us the knowledge about the functioning of various organs. हर ऑर्गन की क्या फंक्शनिंग है, प्लस एक ऑर्गन की दूसरे ऑर्गन से क्या इंटररिलेशनशिप है, उसको स्टडी करने के
फिजियोलॉजी। तो जब हम बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे तो हम एक बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि कौन सी गेम उसके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके जेंडर पे डिपेंड करता है, उनकी फिजियोलॉजिकल अप्रोच पे भी डिपेंड करता है कि वो बच्चे कितना काम कर पाएगा। तो इससे क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ गेम हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद है यूजफुल प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, हमने पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। जब मूवमेंट एक्यूरेट होगी और हमारी मेरी मूवमेंट्स मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग होंगी तो कहीं ना कहीं मैं बैलेंसिंग मूवमेंट को फेस करूंगा और जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज को मैं काफ़ी हद तक, काफ़ी बियॉन्ड लिमिट तक मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज सर्व द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, पुनर्वास। स्पोर्ट्स में इंजरीज होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पोर्ट्स है तो इंजरीज एग्जिस्ट करती है। हम उसको विद हेल्प ऑफ सेफ्टी गार्ड्स, विद द प्रिकॉशन ऑफ प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर डाइट उसको ओवरकम कर सकते हैं, एक ग्राउंड से उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट्स इंजरी, एक प्लेयर जब पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो उसके पास एक परफॉर्मेंस लेवल होता है। जब उसकी इंजरीज हो जाती है तो उसको रेस्ट के लिए जाना पड़ता है, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है 1 मंथ का, जैसे फ्रैक्चर पेन हो गया, प्लास्टर हुआ है, किस तरह की इंजरीज होती है तो प्लेयर के टाइम ब्रेक होता है। आफ्टर 1 मंथ वो प्रीवियस 1 मंथ की परफॉर्मेंस को लेकर ग्राउंड में एंट्री नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या करना होगा, रिहैबिलिटेट होना होगा। अगर वो रनिंग एथलीट था तो आफ्टर 1 मंथ वो ग्राउंड में आएगा तो फर्स्ट डे ही वो रनिंग स्टार्ट नहीं करेगा, वो एक राउंड 2 राउंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ देयर इंजरी 1 राउंड 2 राउंड वॉक लेगा, हाफ राउंड को रनिंग लेगा। दिस कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन करने के लिए हमें फिजियोलॉजी नॉलेज रिक्वायर्ड है, एनाटॉमी की नॉलेज रिक्वायर्ड है और फिजियोलॉजी की नॉलेज रिक्वायर्ड है कि इस पोजीशन में, इस कंडीशन में मेरा बॉडी पार्ट कितना मूव करेगा और कितना उसको मूव करना चाहिए। हाइपोथेटिकली कि नहीं समैटिक मैं भागूंगा वो कई बार क्या होता है डबल अफेक्ट करता है। जो चोट 2 दिन में ठीक हो जाती है वो 4 दिन लेगी तो ज़्यादा लॉस है। ये कहा जाता है स्पोर्ट्स में अगर आप कोई भी फिजिकल फटीग फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो स्टॉप द एक्टिविटी। नेक्स्ट इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने बताया यूजफुल सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता है, जनरली क्या होता है स्पोर्ट्स जो एटलीस्ट जो इंडिया में है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड इंडिया कोई भी प्लेयर है जो आज इंटरनेशनल प्लेयर है वो कभी ना कभी ग्राउंड में रिक्रिएशनल मेथड से गया हो, यहाँ मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है। ये कॉमन इक्विपमेंट्स जो हमारे घर में पैसे भी मिल जाते हैं, लूडो है, चेस है आपके पास, फुटबॉल हो गया आपके पास, इस तरीके से कुछ गेम्स होती हैं जो हमारे पास बाय एनवायरमेंट हमारे घर में आपस मिल जाती हैं। तो वो बच्चा जब ग्राउंड में एंटर करता है तो वो विदाउट चेकिंग देयर फिजियोलॉजिकल, देयर एनाटॉमिकल, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका रिएक्शन टाइम कितना है, क्या वो उसका डिसीजन पावर अच्छी है नहीं है, तो वो गेम एक जनरली स्पोर्ट्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। क्रिकेट खेलना शुरू करेगा, मैं क्रिकेट को रिटायर नहीं करूँगा, क्रिकेट में शुरू कर दिया। ये एग्जाम्पल चेंज करता हूँ मैं, एक बच्चे की हाइट है 5 फीट और एक की हाइट है 6 फीट। क्या 5 फीट का बच्चा जो है वो बास्केटबॉल उसको खेल चाहिए? आपके सब यस, ओके यस, बट वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। 5 फीट का प्लेयर बास्केटबॉल में एग्जिस्ट नहीं करता, सेम वॉलीबॉल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो चेक करें 6 फीट का प्लेयर है, क्या उस बच्चे को खो खेलना चाहिए? अगर आंसर यस है तो मैं आपसे एग्री में यस, लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो। 6 फीट का प्लेयर पर्सन कब बैठेगा खो में, वो कब उठेगा, वो अपनी बॉडी के साथ भी एडजस्ट होता रह जाएगा, गेम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ये जो स्टडी को बताता है एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताया 6 फीट में, उसकी स्ट्रक्चर मसल्स कौन से बॉडी में 2 तरह के मसल्स होते हैं, इधर फास्ट पिच फाइबर और स्लो पिच फाइबर। अगर आपके पास फास्ट पिच फाइबर है और आप मैराथन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, आप 40 मीटर दौड़ तो लेंगे लेकिन कॉम्पिटिशन फाइबर से नहीं दौड़ पाएंगे कभी भी। और अगर ऐसे आपके बॉडी में स्लो पिच फाइबर है, आप स्प्रिंटर 100 मीटर करते रहेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 12 सेकंड 11 सेकंड में आ जाएगा। बट 11 सेकंड में आज की इंटरनेशनल लेवल पे गर्ल्स भी टाइम नहीं देती है, उनका टाइम भी लेस देन 10 सेकंड है। मेरी बात समझ में आता है? तो ये चीजें क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है कि हमें कौन से गेम में जाना चाहिए, कौन से में जाना चाहिए। रिक्रिएशनल चीजें अलग है, अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको पास आपको कैरियर नहीं बनाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि संडे मैच खेलने की तो वीकेंड में मैच खेलना, लेकिन आप परस्यू में जाके एज ए कैरियर तो यू शुड नो अबाउट योर बॉडी कि आपकी बॉडी किस गेम में ज़्यादा हेल्प करेगी आपको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। फैसिलिटेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग क्या होती है कि
ट्रेनिंग शेड्यूल होता है कि आपने अब जिस एज में आप 11th में आपने कभी हमेशा जिम ज्वाइन किया होगा, तो जिम में आपको तो मंडे को बाइसेप्स एक्सरसाइज करवाता है, ट्यूसडे को ट्राइसेप्स करवाता है, सो ऐसे हैमस्ट्रिंग करवाता है, फिर लेग्स करवाता है, फिर वो एब्स करवाता है। ये ट्रेनिंग शेड्यूल बना हुआ है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोच के पास 5 से 6 लड़के ग्रुप होता है, तो सभी एक जैसे नहीं है। फिर दूसरा क्या इंडिया में कोचेस की कमी है, तो एक ग्रुप के पास, एक दूसरे कोच के पास कुछ प्लेयर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कुछ स्टेट लेवल के, कुछ नेशनल लेवल के। तो क्या तीनों के लिए सेम प्रोग्राम ठीक रहेगा ट्रेनिंग सेशन? बताइए। आप 11th में पढ़ा रहा हूँ और साथ में 12th उठा लेता हूँ मैं, तो क्या होगा? इधर 12th क्लासेस में टाइम वेस्ट होगा या फिर 11th से टाइम वेस्ट होगा। तो वहाँ पे क्या रहेगा? नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। कोच के पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये बच्चा इतना नहीं कर पाएगा, इतना कर पाएगा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम देना, उसको ट्रेनिंग सेशन देना कि आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, जैसे आप बच्चे जिम में जाते हैं तो फर्स्ट डे वो हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, या मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, अगर कभी भी आप कोशिश, कभी भी आप ऑब्जर्व कर लेना, बाहर बैठ के बास्केटबॉल के बाद जाके बैठ जाएगा, जो भी प्लेयर आएगा वो पहले 3D दूर से डालने की कोशिश करेगा। होना क्या चाहिए? नजदीक से डालने, धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। ये क्या है? ट्रेनिंग सेशन का प्रिंसिपल। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लोड ओवरलोड ऑप्टिमम लोड होना चाहिए। ये कब होगा? जब ट्रेनर की। So let's continue our topic. Next topic is skeletal system. Today we will discuss about skeletal system, anatomy of skeletal system, mean to say कि बॉडी में कौन सी कितनी बोन्स होती हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, फंक्शनिंग बाद में करेंगे। सो फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206. So let's count 206 bones in human body. अगर आपने स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करना है, तो स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्कल, ट्रंक, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। एक होता है स्कल पार्ट, ये फेस का पार्ट, फिर होता है ट्रंक, ट्रंक में 2 पोर्शन होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, राइट। ऐसे आपके पास लिम्स, लोअर लिम्स, हिप जॉइंट से लेग का जो पोर्शन होता है दैट इज लोअर लिम्स हो जाता है, हाथ का पोर्शन होता है स्केलेटल कॉलर बोन से लेकर ये होता है आपका अपर लिम्स। तो लेट्स काउंट स्केलेटल सिस्टम बोन इन ह्यूमन बॉडी। टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 206। तो फर्स्ट इज स्कल। स्कल के 2 पार्ट होते हैं, फेशियल स्कल और क्रेनियम स्कल। फेशियल स्कल में आपके पास 14 बोन्स होती है, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, लोअर जा, अपर जा, इस तरीके से 14 बोन्स होती हैं। और आपके जो क्रेनियम स्कल है, जहाँ पे बाल होते हैं आपके सॉरी, उसमें होते हैं आपके पास 8 बोन्स। तो स्कल में कितनी बोन्स होगी आपके पास? बोलो 24, 22, 22 बोन्स, 14 प्लस 8, ठीक है। स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22। उसके बाद आता है हाइड बोन, नेक में होती है आपके पास, इसको बोलते हैं पॉइंट बोन। ये एक होती है, राइट। उसके बाद आता है ट्रंक पोर्शन, शोल्डर जॉइंट से आपका हिप जॉइंट तक के पेशो पोर्शन क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट। तो फ्रंट में क्या होता है? फ्रंट में रिब केज होता है, रिब केज में 24 रिब्स होते हैं, जिसको काउंट करते हैं 12 इन पेयर्स। जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ रिब्स, देन से 12 इन पेयर, इंस्टेड ऑफ 24 भी ठीक है, लेकिन रिब्स को क्या होता है? हमेशा पेयर में काउंट करते हैं, दैट इज 12 नंबर इन पेयर्स, ठीक है। और सेंटर में जो बोन होती है, जहाँ पे आपके रिब के आगे अटैच होते हैं, दैट इज योर स्टर्नम। तो 24 बोन्स आपकी होगी रिब की और एक होगी आपकी स्टर्नम। तो कितने होंगे? 25 बोन्स चेस्ट में होंगी आपकी, 25 बोन्स, 24 ribs plus 1 sternum, राइट। उसके बाद आपके पास अपर लिम्स। अपर लिम्स में 64 बोन होते हैं, दोनों हाथों में मिला के, दोनों बाजू में मिला के 64 बोन होती है।
फर्स्ट होती है स्कैपुला, जहाँ पे आपका शोल्डर कैविटी बनती है, दूसरा आपका क्लैविकल, कॉलर बोन, तीसरी आपकी फ्यूमर बोन, ये शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक ये होती है आपकी फ्यूमर बोन, ये एक होती है। उसके बाद आपके पास आपका एल्बो से रिस्ट की जॉइंट ये दो होती है, अल्ना और रेडियस दो होती है। फिर रिस्ट जॉइंट इसको बोलते हैं कार्पल्स, कार्पल्स 7 होते हैं आपके पास जो रिस्ट जॉइंट को जनरेट करते हैं। उसके बाद आपके पास मेटाकार्पल्स जो पाम का बेस बनाते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 आपके पास मेटाकार्पल्स होते हैं और 14 आपके पास फ्लैंजेस होते हैं। जैसे हम काउंट करते हैं अपने पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर 14 इन ईच वन हैंड, तो दोनों के कितने हो गए 28 फ्लैंजेस। तो टोटल कितनी बोन्स हो गया अपर लिम्स में 64 बोन्स इन अपर लिम्स। नाउ लेट्स काउंट फॉर लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में क्या होता है 62 बोन्स होती है। कौन सी होती है? एक होता है हिप बोन जिसको बोलते हैं इस्चियम और इलियम, ये एक बोन होती है। उसके बाद आपके पास फीमर बोन, हिप जॉइंट से शोल्डर जॉइंट नी जॉइंट तक की बोन जो होती है, थाई बोन जिसको बोलते हैं फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर। उसके बाद आपके पास लोअर लेग नी जॉइंट से एंकल जॉइंट तक ये दो बोन होती है। फर्स्ट इज फिबिया एंड सेकंड इज टिबिया, फिबुला एंड टिबुला। F फॉर फिबुला, F फॉर फ्रंट, जो लोअर लेग में फ्रंट में लेग है और बोन है दैट इज फिबिया, बैक साइड में दैट इज योर टिबिया। उसके बाद आपका एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट क्या होते हैं आपके पास, उसको बोलते हैं टार्सल। रिस्ट जॉइंट को बोलते हैं कार्पल्स, एंकल जॉइंट को बोलते हैं टार्सल्स। रिस्ट जॉइंट 7 टार्सल्स होते हैं, लेकिन जो आपका एंकल जॉइंट है वहां पे 6 टार्सल होते हैं। ठीक, तो दो बोन से डिफरेंस यहाँ पे आता है। टार्सल 6 होते हैं जो एंकल जॉइंट को बनाते हैं। उसके बाद होते हैं 5 मेटाटार्सल जो आपके टो के बेस को बनाते हैं, जो पंजे को बनाते हैं दैट इज 5। जैसे पाम का बनाते हैं ऐसे टो का बनता है, उसको बोलते हैं 5 मेटाटार्सल्स। फिर आते हैं फ्लैंजेस 14 ईच फुट पे, एक पैर में 14 होते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों लेग्स को मिलाकर 62 बोन्स जाती है आपके पास लोअर लिम्स में। अपर लिम्ब में कितनी काउंट की हमने 64 और लोअर में कितनी है 62। कहां डिफरेंस आता है, टार्सल्स 7 नहीं होते 5 होते हैं, 6 होते हैं सॉरी, और हाथ में 7 टार्सल्स होते हैं। तो ये टोटल हम करेंगे ये बनता है 200 बोन कितनी होती है हम बॉडी में 206। तो 6 बोन कौन सी होती है, 6 बोन कौन होती है लेफ्ट ईयर और राइट ईयर। ये बोन स्टार्टिंग स्टेज में होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, इसको अलग से काउंट करते हैं, अपर ईयर, मिडिल ईयर एंड लोअर ईयर। तो 3 बोन आपके लेफ्ट साइड में और 3 आपके राइट साइड में ईयर बोन। तो ये क्या हो जाती है 26 बोन आती है, टोटल आता है बस 206 बोन्स, राइट। तो दिस इज योर स्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इस बात को ध्यान रखिए आप। हमने आज क्या डिस्कस किया है, एनाटॉमी डिस्कस किया है स्केलेटल का। सो फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या मूव रहते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय WHO and medical team, right? Keep washing your hands frequently.